This is set 65/5/3. This set has come in March 2025. This is section A. This section comprises multiple choice questions, MCQs of 1 mark each. Its first question is, the principal value of cot inverse minus 1 by root 3 is, there are 4 options. We have to find the right one. And how we will do this sum? Let y is equal to cot inverse minus 1 by root 3. Cot y is equal to minus 1 by root 3. That is equal to minus cot pi by 3. Now this is minus. This comes in the second quadrant. So cot pi minus pi by 3. That is equal to cot 2 pi by 3. Now here we know that range of principal value of branch of cot inverse is 0 to pi. ये आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज है वो कौन से इंटरवल में आती है, 0 से पाई के बीच में. तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए. एंड हेयर cot 2 pi by 3 is equal to minus 1 by root 3, and hence principal value of cot inverse minus 1 by root 3 is 2 pi by 3. Now second question is, if A is equal to matrix Aij is a 3 into 3 diagonal matrix such that A11 is 1, A22 is 5 and A33 is minus 2, then determinant of A is, there are 4 options. आपके पास A आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपकी और उसके आपके डायगोनल्स गिवन है A11, A22 एंड A33. सो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे विच विल कम आउट टू बी -10 एंड सो B इज द ऑप्शन. नाउ इस थर्ड क्वेश्चन इज, if A is equal to KB where A and B are 2 square matrices of order n and K is a scalar, then there are again 4 options. Now A is equal to KB where A and B are 2 square matrices of order n. So आपके पास determinant of A क्या हो जाएगा? K raised to power n, determinant of B. And what is n? N is the order of the matrix. So B is the option. Now fourth question, if fx is equal to sin square ax upon x square if x is not equal to 0 and this is equal to 1 if x is 0, this is continuous at x is equal to 0, then the value of a is, there are 4 options. आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपके इसके इक्वल है अगर x 0 के बराबर नहीं है, और अगर x 0 के बराबर है दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस at x is equal to 0. This is given to us. We have to find the value of a. Now continuation के लिए क्या हो जाएगा? Limit of fx x tends to 0 is equal to f0. We know left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0. यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन दिया गया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ fx as x tends to 0 is equal to f0. fx is given sin square ax upon x square and here मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो किससे? ए स्क्वेयर से. सो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. अब ये आपका लिखा जाएगा, ए स्क्वेयर आप यहाँ ले लो और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स होल स्क्वेयर. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस. एंड ये हमें पता है इसकी जो लिमिट होती है, हमने +1 में इसको किया हुआ है, वो 1 होती है. सो ए स्क्वेयर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वेयर. f0 किसके बराबर है? 1 के बराबर है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू +-1. सो C इज द ऑप्शन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 12x is equal to determinant of 6 - 5 4 and 3, then the value of x is, there are 4 options. आपके पास ये दिया हुआ है, तो आप क्या करने वाले हो? इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और दोनों को इक्वेट कर दोगे. आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा. इट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 60 + 18 + 20. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, x स्क्वायर इज इक्वल टू 49. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +-7. सो C इज द ऑप्शन. Now the sixth question is, if probability of A union B is 0.9
and probability of A intersection B is 0.4, then probability of A bar plus probability of B bar is, there are 4 options. Now probability of A union B, ये आपका फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B. इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास probability of A प्लस probability of B की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 1.3. मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. So probability of this is 1 minus probability of A plus probability of B bar is 1 minus probability of B. This is equal to 2 minus probability of A plus probability of B, and 2 minus 1.3, that is 0.7. So D is the option. Now 7th question, if A is this matrix then A cube is, there are 4 options. तो आपने यहाँ पर 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है. पहले A को A से कर लो, फिर A स्क्वायर को अगेन A से कर लेना, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा. B इज़ द ऑप्शन. सो मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, और B इज़ द ऑप्शन हेयर. Now the 8th question, let A and B be 2 matrices of suitable orders, then which of the following is not correct? आपने इसमें से ये बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है. तो थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना. द वर्ड इज़ नॉट इज़ रिटन हियर, तो आपने बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आता है. ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, नहीं, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. सो डी इज़ द ऑप्शन. Now the 9th question is, the area of the region enclosed between the curve y is equal to x mod of x, x-axis x is equal to -2 and x is equal to 2 is, there are 4 options. Now equation is y is equal to x mod x. इसको रीराइट करके लिखो. y is equal to x square if x is greater than equal to 0 and y is equal to minus x square if x is less than 0. अगर x 0 से बड़ा है तो ये आपके पास mod of x आपके पास x हो जाएगा and this becomes x square. अगर x less than 0 आप वैल्यूज़ लेते हो तो ये mod of x minus x हो जाएगा और this becomes minus x square. एक हमने ग्राफ बनाना है x इज इक्वल टू -2 का, एक बनाना है x इज इक्वल टू 2 का. अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाने लगे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे आपका y 0 हो जाता है. अब बाकी वैल्यूज़ आप x ग्रेटर देन 0 लोगे, दैट वैल्यू कैन बी 1 2 ऑनवर्ड. सो y की वैल्यू अगर x 1 लेते हो y 1 हो जाता है, अगर x 2 लेते हो तो y 4 हो जाता है. तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो दिस लाइन इज़ द ग्राफ, दिस लाइन इज़ द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, x लेस देन 0. यहाँ पर x की वैल्यूज़ क्या लोगे, लेस देन 0 लोगे. तो ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर x लेस देन 0 तो x की वैल्यूज़ भी आप लेस देन 0 लोगे. सो लेट इट बी -1 -2, यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू, बट आई हैव टेकन दीज 2 वैल्यूज़. इफ़ x इज़ -1 सब्सिट्यूट करके देखो, y की वैल्यू -1 आएगी, x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू -4 आएगी. तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा. तो यहाँ पर ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू -2 का, ये ग्राफ हो गया x इज इक्वल टू 2 का. और आपको इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, ये 2 ग्राफ का आपने एरिया बताना है, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का एरिया बताना है. तो यहाँ पर हो जाएगा -2 से 0, ये हो जाएगा 0 से 2. अब यहाँ पर जब 0 से -2 लोगे तो ये आप नेगेटिव लोगे, ये फंक्शन आपका जो भी है वो आप नेगेटिव में आएगा आपका फंक्शन, और यहाँ पर आपका फंक्शन पॉजिटिव आएगा. ये आपका इस एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा. तो आपका अगर ये आपका फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो नेगेटिव होके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. अब मैं यहाँ पर इसका लिखने लगी हूँ, ये देखो -2 से 0, दिस ग्राफ इज -y dx प्लस 0 से 2 y dx. -y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -x स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dx 0 से 2. इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
16/3। अब मैं इसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। आंसर आपका आना चाहिए 16/3, सो बी इज़ द ऑप्शन। Now 10th question is, if fx is this is the greatest integer function, then the correct statement is A. F is continuous but not differentiable at x is equal to 2. B. F is neither continuous nor differentiable at x is equal to 2. C. F is continuous as well as differentiable at x is equal to 2. D. F is not continuous but differentiable at x is equal to 2. Now here B is the option. F is neither continuous nor differentiable at x is equal to 2. Now you see, आपने 11th में इसका ग्राफ बनाया था, तो अगर 11th में ग्राफ बनाया तो आपको ग्राफ याद है, तो आपको पता होगा ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा। अगर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो यहाँ पर B is the option. Now the 11th question is, integrate cos 2x minus cos 2 theta upon cos x minus cos theta dx is equal to, there are 4 options and you have to find the right one. So आपने इसको इंटीग्रेट करना है। cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 and cos 2 theta can be written as 2 cos square theta minus 1. तो आपने इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, आपके पास आ जाएगा 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square theta plus 1 अपॉन cos थीटा cos x माइनस cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, आपके पास 2 कॉमन ले लो। इन द ब्रैकेट यू विल हैव cos square x माइनस cos square थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। इसके फैक्टराइज कर लो, आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x प्लस cos थीटा। इसका मतलब आपने यहाँ पर cos x dx इसको इंटीग्रेट करना है एंड cos थीटा dx इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखो मैंने भी गलत लिख दिया था पहले, तो ये इसको ध्यान देना है। cos x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज sin x एंड 2 तो आपका बाहर आएगा ही आएगा। cos x की इंटीग्रेशन sin x है। नाउ दिस cos थीटा इज कांस्टेंट, सो दिस इज cos थीटा एंड यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन x है प्लस c, सो दिस इज 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c, सो दिस इज द आंसर। एंड यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपका कौन सा आता है, ए ऑप्शन आता है, sin x प्लस x cos थीटा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना कि ये cos थीटा आपका कांस्टेंट है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये आपका कांस्टेंट आएगा, ये cos थीटा बाहर आएगा और यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का आपका x बनता है, तो ये दिस इज द आंसर, सो ए इज द option. 12th question, you have to integrate 2x upon 5x square plus 1 dx from 0 to 1 and this is equal to, again there are 4 options, you have to find the right one. Now here इसको आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये आपका fx फंक्शन है, अगर इसकी आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये आता है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स कभी भी आपके पास आ जाए, ये आपका फंक्शन है और उसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, लॉग 5x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। इसमें अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1/5 log x माइनस 0, सो आंसर इज 1/5 log 6, सो ए इज द ऑप्शन। Now the 13th question is, the slope of the curve y is equal to minus x cube plus 3x square plus 8x minus 20 is maximum at, these are the 4 options. Now this is y is equal to this and slope निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, dy by dx निकालते हैं, that is minus 3x square plus 6x plus 8। अब हमको क्या करना है, we are to find where slope of the curve is maximized। हमारी स्लोप कब मैक्सिमम है हमें ये बताना है, तो क्या करेंगे, सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, तो हमने डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नाउ हियर डेरिवेटिव इज ए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, देखो ये एक्स स्क्वायर में है, इसका मतलब ये पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड हो गया।
So derivative is a downward opening parabola. So maximum value कहाँ आएगी? इसके वर्टेक्स पे आएगी. So maximum value occurs at its vertex. वर्टेक्स यहाँ पर क्या है? -b/2a. तो b की वैल्यू यहाँ 6 हो गई, a की वैल्यू -3 हो गई. सब्सिट्यूट कर दो वैल्यूज, यू विल गेट 1. सो x = 1 को किस में सब्सिट्यूट करोगे? फंक्शन में. y = -x³ + 3x² + 8x - 20 में सब्सिट्यूट करोगे. ना x = 1 को इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करोगे. आपकी वैल्यू आ गई -10. सो पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास? 1 and -10. सो स्लोप इज मैक्सिमम एट 1 - 10. सो A is the option. Now the 14th question. The integrating factor of the differential equation this is, there are 4 options. We have to find the correct one. Now इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपके पास आ जाएगा dy/dx = x + y cos x अपॉन -1 + sin x. तो x के नीचे ये डिनोमिनेटर ले लो प्लस y के नीचे ये डिनोमिनेटर ले लो. हम ऐसे लिख सकते हैं. अब आप इसको इस साइड ले जाओ और इसको आप ऐसे लिख दो dy/dx + cos x अपॉन 1 + sin x y = -x अपॉन 1 + sin x. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ? e⁻⁻ इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 + sin x. तो ये आपके पास आ गया. ये आपके पास fx है, ये आपके पास f'(x) है. तो ये f'(x) अपॉन fx dx किसके बराबर होता है? log 1 + sin x. तो ये आपके पास आ जाएगा e log 1 + sin x. e और log कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 + sin x. सो विच इज़ द ऑप्शन? B इज़ द ऑप्शन. नेक्स्ट सम है आपके पास 15th. फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x + 2y इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस. एंड इन्होंने ये फिगर आपको दिया हुआ है. मैंने इसको देख के ये इस पे ये शेडेड पोर्शन किया है. तो आप यहाँ पर शेडेड पोर्शन कर दोगे. तो आपको बताना क्या है? द करेक्ट फिजिबल रीजन इज़, कौन सा इसका फिजिबल रीजन है जो करेक्ट है. तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास. तो आप इसको कर सकते हो. ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप इसको ईजिली बता सकते हो. सो करेक्ट फिजिबल रीजन इज़ AOEC. AOEC. सो B इज़ द ऑप्शन. Now the 16th question. The sum of the order and degree of the differential equation this is. There are 4 options. आपको इसका डिग्री बतानी है और आपको इसका ऑर्डर बताना है, फिर उनका सम करना है. तो आपका यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ऑर्डर 2 आ जाएगा. अगेन दिस इज़ द ऑर्डर और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री आपकी 1 आ जाएगी. ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, उनका सम करते हो तो 3 आता है. तो आपके पास C इज़ द ऑप्शन. So C is the option. Now question number 17. The respective values of magnitude of A and magnitude of B if given vector A minus vector B dot vector A plus vector B is equal to 512 and magnitude of vector A is equal to 3 times magnitude of vector B are. There are 4 options. We have to find the right one. Now write vector A minus vector B dot vector A plus vector B. This is equal to 512. So इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो. You will get this. Now scalar product is commutative. So आपके पास आ जाएगा now magnitude of vector A² minus magnitude of vector B² is equal to 512. इसकी जगह आप ये लिख दोगे, ये हमें गिवन है. तो अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास magnitude of vector B is equal to 8 आ जाएगा और इसकी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A आ जाएगा. एंड द ऑप्शन इज़ C. एंड द ऑप्शन इज़ C because magnitude of vector A is 24, magnitude of vector B is 8 and this is the C is the option. Now the 18th question. Let vector A be the position vector whose tip is the point 2 minus 3. If vector AB is vector A where coordinates of A are -4, 5, then the coordinates of B are, there are 4 options. Let O be the origin and P 2 minus 3 be the tip of the position vector A. So vector A is equal to OP vector is equal to 2i cap minus 3j cap.
Now A has coordinates -4 and 5. Let B has coordinates x, y. So vector AB is position vector of B minus position vector of A. So इसको आप ऐसे लिख सकते हो, position vector of B is this and position vector of A is this and vector A is this. इसको सॉल्व करोगे you will have -2i cap plus 2j cap is equal to xi cap plus yj cap. So x की coordinates -2 आ जाएंगे, y के coordinates 2 आ जाएंगे. So coordinates of B are -2 and 2. So C is the option. Now question number 19 and 20 are assertion and reason based questions. Two statements are given. One labeled assertion A and another labeled reason R. Select the correct answer from the codes A, B, C, D as given below. Now A, both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. B, both assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of the assertion A. C, assertion A is true but reason R is false. D, assertion A is false but reason R is true. ये आपका assertion और reason based question है. Its 19th question is, the shaded portion of the graph represents the feasible region for the given linear programming problem. आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, आपके पास एक शेडेड पोर्शन ये वाला है और एक शेडेड पोर्शन आपका इस लाइन के डॉटेड लाइन के नीचे का है. Now minimize z is equal to 50x plus 70y subject to constraints 2x plus y greater than equal to 8, x plus 2y greater than equal to 10, xy greater than equal to 0. Z is equal to 50x plus 70y has minimum value 380 at B24. The region represented 50x plus 70y less than 380 does not have any point common with the feasible region. Now reason R, this is a true statement because 50x plus 70y less than 380, 5x plus 7y is equal to 38 का जो ग्राफ है ये आपका डॉटेड लाइन है और इसके नीचे वाला जो रीजन है 50x plus 70y less than 380 का आपका ये वाला रीजन आता है. तो ये इसमें इस फिजिबल रीजन का कुछ भी कॉमन नहीं है एंड दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अब हम लोगों ने ये देखना है कि फर्स्ट जो आपका असर्शन ए है ये ट्रू है या फॉल्स है. असर्शन ए, कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए ए 0, 8, B 2, 4, C 10, 0. सो ए पे जो Z में इसमें की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी 560 आती है, 2, 4 पुट करते हैं तो 380 आती है, 10, 0 पुट करते हैं तो 500 आती है. तो ये किस पॉइंट पे मिनिमम है? 2, 4 पे आपका 380 आता है, ये मिनिमम है. सो Z 50x plus 70y has minimum value 380 at B24. तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है. एंड रीज़न आर, द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x plus 70y less than 380 doesn't have any point common with the feasible region. Both assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. So A is the option. Now 20th question, assertion A, let A is a set of x which belongs to R. X lies between -1 to 1. If f is a function from A to A, be defined as fx is equal to x square, then f is not an onto function. Reason R, if y is equal to -1 belongs to A, then x is equal to plus minus root -1 which doesn't belong to A. Now हमें यहाँ पर बताना है कि assertion A ट्रू है या फॉल्स है एंड रीज़न R ट्रू है कि फॉल्स है. पहले मैं सिर्फ assertion A को देखने लगी हूँ, तो रीज़न R को मैं नहीं देख रही, सिर्फ इसको बताने लगी हूँ कि ये आपका ऑन टू है या नहीं है. Now assertion A आपके पास ये है एंड f फ्रॉम A टू A, ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है. यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन दोनों सेम है. fx आपका फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर. तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है. तो मैं यहाँ दो मेथड बताने लगी हूँ. तो पहला तो है कि आपने इसकी रेंज बतानी है और आपने इसका कोडोमेन आपको मालूम है ये है. अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आएंगे इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है.
तो यहाँ पर अगर डोमेन आपका -1 to 1 है, रेंज निकालने के लिए ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो तो आपके इसकी रेंज आ जाएगी 0 to 1। इसका मतलब रेंज आपकी ये है, कोडोमेन आपकी ये है, तो आपकी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। सो यहाँ पर एक सेकेंड मेथड मैं बता रही हूँ। We know a function is onto if every element in the codomain A has a pre-image in the domain A। अगर कोडोमेन में हम कोई पॉइंट लेते हैं और उसका एक प्री इमेज डोमेन में होता है तो ये आपका onto फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस लिया विच इज़ इन द कोडोमेन, एंड इस -1 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी ±√-1 विच डजेंट बिलोंग टू ए, जो कि डोमेन में बिलोंग नहीं करता। इट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट इन द कोड डोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन द डोमेन ए, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। अब आपका क्या हो गया, असर्शन ए इज ट्रू स्टेटमेंट हो गई, एंड रीज़न आर इज अगेन ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज रीज़न आर में यही चीज़ बताई गई है और वो शो करता है कि ये आपका ऑन टू नहीं है। सो आपका assertion A is a true statement, reason R is a true statement, and reason R is the correct explanation of assertion A. So क्या आपका ऑप्शन हो गया, A is the option. Now section B. This section comprises 5 very short answer type questions of 2 marks each. 21st question. Find the domain of sin inverse x square minus 3. हमने इसकी डोमेन बतानी है, तो आपका ये x square minus 3 किस में लाई करेगा, -1 to 1 के बीच में। तो यहाँ पर आप इसमें +3 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 2 to 4। नाउ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लीजिए, x - 2 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा आता है तो आपके x किस में लाई करेगा, -2 to 2 के बीच में। नाउ सेकेंड एक्स स्क्वायर -2 इस साइड ले जाइए, तो x स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनेंगे x - √2 x + √2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू √2 x लेस देन इक्वल टू -√2। इसको आप नंबर लाइन पे ले लो। अगर आप इसको नंबर लाइन पे लोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ आपकी ओवरलैप कर रही है। तो इस एक इंटरवल आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक इंटरवल आएगा यहाँ से यहाँ तक। सिंस देयर इज इक्वलिटी साइन हियर, सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to -√2 एंड √2 to √2 एंड यूनियन ऑफ दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट्स हमारी बड़ी बड़ी होती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़नी थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बट पेशेंस रखा करो स्टेटमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार सम्स बहुत इजी होता है बट हम स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ते तो हमें सम डिफ़िकल्ट लगने लगता है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। इसलिए मेरा थोड़ा पर्पस होता है कि मैं आपको सम समझाऊँ, उससे पहले स्टेटमेंट थोड़ा क्लैरिटी से आपको सुनने को मिल जाए। तो मेरी प्लीज़ जब मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुना करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। लेट द वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक हॉलो स्फीयर बी कांस्टेंट इफ द इनर रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 cm/s। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस व्हेन द रेडियाई आर 2 cm एंड 4 cm रिस्पेक्टिवली। आपका 2 मार्क्स का समय ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता, बट अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आपको मालूम है 4/3 πr³ होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज 4/3 πr³ - 4/3 πr³, where capital R is the outer radius and inner radius I have denoted it by small r. So volume of a hollow sphere is this. Now small r is 2 cm given, capital R is 4 cm, this is given, dr by dt is 2 cm/s, this is given. यहाँ पर देखो inner radius increases at the rate of 2 cm/s. It means inner radius increases by this rate. So dr by dt is equal to 2 cm. अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास ये आया, इसमें से 4/3 पाई कॉमन ले लो।
आपके पास आ जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पर एक पहली लाइन थोड़ा ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक हॉलो स्फीयर बी कांस्टेंट, इसका मतलब v यहाँ पर कांस्टेंट है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है अब आपने। नाउ v हियर इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। यहाँ पर ये आप इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 3v/4 पाई इज इक्वल टू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब ये सारा कांस्टेंट है, सो आपके पास आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 3v/4 पाई। इनका दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 3r² dr/dt माइनस 3r² dr/dt एंड इस कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होता है 0। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, कैपिटल R आपके पास 4 था, स्मॉल r आपके पास 2 था एंड dr/dt आपके पास 2 था। तो इसको आप सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास dr/dt क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब dr/dt इज़ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द आंसर। सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। 23rd question, a man needs to hang 2 lanterns on a straight wire whose end points have coordinates A this and B this. Find the coordinates of the point where he hangs the lanterns such that these points trisect the wire. तो आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और P and Q दो पॉइंट्स हैं and these points trisect this line and we are to find the coordinates of P and coordinates of Q. So अगर P के जो कोऑर्डिनेट्स लोगे तो आपकी रेशो आ जाएगी 1:2। जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे इसकी रेशो आ जाएगी 2:1। इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना आपको आता है तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड आई थिंक इट्स ईजी वन। Now 24th question A part. Differentiate sin x upon root cos x with respect to x. So y आपके पास आ गया sin x upon cos x, मैंने इसको 1/2 ले लिया है, रूट को हटा के I have written 1/2 here. So आपके पास आ गया sin x cos x minus 1/2। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है। y आपके पास ये आ गया, डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx इज यूवी मेथड प्रोडक्ट रूल, तो उसके हिसाब से आपके पास ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे cos x माइनस हाफ, तो यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर भी इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट cos x 1/2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos x 3/2। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x 1/2 cos x 3/2 प्लस साइन स्क्वायर x। इनका पावर ऐड हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा cos x होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos x 3/2। तो यहाँ पर दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ 24th question B part. If y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0. So I think ये 24th का A और B था, तो B इज़ अ बिट ईजी, A थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था या कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग था। तो अगर चॉइस करनी होगी तो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए था। सो y इज इक्वल टू दिस, dy/dx निकाल लो, सबको निकालना आता है। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव। सो इक्वेशन इज d² y अपॉन dx² प्लस वाई। यहाँ पर वैल्यू d² y और dx की कर दो और y की वैल्यू आप ये वाली ले लोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर 0 आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। नाउ 25th क्वेश्चन A पार्ट. फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। नाउ दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। आपने अगर वेक्टर निकालना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है तो आपका ये फॉर्म, और उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप पहले A क्रॉस B निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपने वो जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी,
तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. Now 25th question B part. Let vector A, vector B and vector C be three vectors such that vector A dot vector B is equal to vector A dot vector C and vector A cross vector B is equal to vector A cross vector C. Vector A is not equal to 0. We are to show that vector B is equal to vector C. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस. तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू प्रूव.